Hello everyone, welcome to today's video. Today's video is going to be about ultimate personal hygiene. For people who don't know me yet, I am Stuti. I'm a nano influencer and a UGC creator. I make videos regarding skincare, beauty and fashion. So if any of these interests you, make sure to join my channel. Do follow me on Instagram because I make a lot regarding skincare videos there. Let's get started with the video. Let me quickly give you a brief about what topics we're going to talk here. So we're going to talk about oral hygiene, body and hair care, period care, personal hygiene and hair removal. And this video is not gender specific, so if you're a guy watching this, you can still continue to watch it. And girls के लिए तो ये अच्छा topic है ही. I know I'm a girl already, so let's get started with the video. First and foremost thing that we are going to be talking about is oral hygiene. Now, this is the most important hygiene routine that we should mandatorily follow क्योंकि ये टॉपिक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे क्रूशियल इसलिए है क्योंकि आई कैन स्टिल बी अराउंड पीपल हु आर unhygienic and do not take shower, but I cannot be around people who have a bad breath. These are the steps that I follow personally. First, I do oil pulling, which basically means आप coconut oil लोगे, you're supposed to put it in your mouth. आप gargle type करते रहोगे with that oil for you're supposed to actually do it for like 15 to 20 minutes. ये काफी traditional way है जो हमारी नानी दादी शायद करती रहती थी. This actually whitens your teeth and also makes it stronger. So make sure you do this. You're supposed to do this for 15-20 minutes, but I know इतना time सबके पास होता नहीं है. So what I basically do is I do it for 3 to 5 minutes while scrolling Instagram or something. After which you're supposed to use mouthwash. I know ये काफी लोग wrong तरीके से करते हैं कि लोग पहले ब्रश करते हैं उसके बाद माउथ वॉश करते हैं, बट मैंने कहीं पे ये स्टडी किया था कि द टूथपेस्ट दैट यू यूज ना दैट इज सपोज टू स्टे इन योर माउथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड. आप ऑफ कोर्स क्लीन करोगे उसके बाद पानी को फेंक दोगे एंड द रेजिड्यूज दैट आर सपोज टू स्टे. तो माउथ वॉश हमें पहले करना है, माउथ वॉश के बाद हमें टूथब्रश करना है. फॉर माउथ वॉश यू कैन यूज Sensodyne. I'll attach a picture. And then you're supposed to brush your teeth. So electric toothbrushes actually helps, but काफी लोग afford नहीं कर सकते या maybe नहीं करना चाहते. तो for them you can also use normal toothbrush along with toothpaste. Toothpaste मैं suggest करूँगी Colgate का purple color का toothpaste आता है. That makes the most sense क्योंकि purple is supposed to cancel out yellow, so your teeth will appear more whiter. एंड दैट इज इट. लोगों को लगता है कि टूथब्रश और माउथ वॉश करने से हो गया ओरल हाइजीन, बट ऑयल पुलिंग बहुत अच्छा डिफरेंस लाता है आपके ब्रेथ में. एंड मैंडेटरी स्टेप ये है दैट यू आर सपोज टू रेगुलरली स्क्रैप योर टंग. उसके लिए एक टूल आता है दैट इज टंग स्क्रैपर. जो सपोज टू ब्रश योर टीथ, rinse it, then you're supposed to bring out your tongue and ऐसे ऐसे scrape करना होता है टंग को. Now ये बहुत important step है इसलिए क्योंकि your tongue holds the most of the bacteria that actually causes bad breath. तो उसको regularly साफ करना बहुत बहुत important है. Additionally आप एक tool आता है I'll attach, उससे आप टीथ के इंटरनल एरिया मतलब दो टीथ के बीच वाला एरिया भी क्लीन कर सकते हो. दैट इज एन एडिशनल स्टेप मैं कहूंगी बिकॉज आई डू नॉट डू दैट, बट बाकी सारी चीजें आई डू. टूथ मिस्ट आता है दैट इज सपोज टू यू सपोज टू कैरी दैट टूथ मिस्ट व्हेन यू आर आउट. मे बी आप अगर स्कूल गोइंग गर्ल हो या कॉलेज गोइंग गर्ल हो और बॉय हो, कोई भी हो, you can just directly spray it in your mouth and your mouth will stay fresh. ये हो गया. Additionally you can either carry a tooth mist or you are going to carry your chewing gums because you never know when you need this. Now we are coming to the second point, that is body and hair care. For body care I like to double cleanse my body. तो first for that I use body wash जो कि like liquid body wash आता है, उसको lather करते हो आप and you use it all over your body. Then I like to use a bar of soap also for each of my folds जो भी अपने body पे है, like underarms, like ये वाला area होता है, elbows, knees,
हर फोल्ड पे आई मेक श्योर आई like clean it really well. For body washes and actually entire body range, I like the Plum's vanilla body range, and I also sometimes use Vivilka body wash, sometimes I use Santoor wala body wash, and a lot of other body washes as well. Now two things that you are supposed to keep in your mind is, अगर आपको body acne होने की problem है तो यू आर गोइंग टू यूज सैलिसिलिक एसिड बेस्ड बॉडी वॉश. मेरे को क्योंकि नहीं होता बॉडी एक्ने, आई जस्ट यूज एनी रैंडम बॉडी वॉश दैट स्मेल्स नाइस. एंड द सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज, आई नो लूफा जो आप यूज करते हो दैट रियली लुक्स वेरी एस्थेटिक, और व्हेन यू एक्चुअली रब इट ऑल अराउंड विथ बॉडी वॉश तो बहुत अच्छा लैदर करता है. बट दैट लूफा is a breeding ground for bacteria, because लूफा में बहुत बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं एंड वहाँ पे सारा जो मॉइस्चर होता है वो ट्रैप्ड रहता है एंड वो सूख नहीं पाता है, तो इट ट्रैप्स इन ऑल द मॉइस्चर दैट कैन एक्चुअली वर्सन योर बॉडी एक्ने इफ यू आर हैविंग ऑलरेडी. So I will really suggest you to switch your loofah with a silicone based either body scrubbers आते हैं silicone based, या तो you can actually do one thing that you can use a bath towel instead of loofah. That won't लैदर बहुत ज्यादा नहीं करेगा, आई नो. एंड सिलिकॉन वाले जो बेस्ड वो होते हैं बॉडी स्क्रब्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा लैदर नहीं करते हैं, बट इट्स एक्चुअली वेरी वेरी अनहाइजीनिक टू यूज loofah. Use anything instead of that. You can literally use a handkerchief instead of loofah, but loofah use नहीं करो. Then I go on with a bar of soap, as I already said. उसके बाद अगर मुझे पैम्पर रूटीन थोड़ा चाहिए होता है, आई नो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, हमारे लिए थेरेपी होता है टू लाइक हैव अ पैम्पर सेशन, राइट? तो उसके लिए आई ऑल्सो यूज समटाइम्स बॉडी स्क्रब्स. डव के हर एक रेंज ऑफ बॉडी स्क्रब्स आर so good, smells amazing. You can use them, but if you cannot afford or do not want to try Dove वाले body washes, I mean scrubs या बाहर के किसी भी scrubs, what you can do is go to your kitchen, grab some coffee or tea leaves, like चाय तो बनाते ही होगे वहां पे होगा, and take some sugar. ठीक है, उसमें मस्त अपना बॉडी वॉश जो भी है वो मिलाओ, थोड़ी कोकोनट ऑयल मिला सकते हो, ग्लिसरीन मिला सकते हो, हनी मिला सकते हो. सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करो, पुट इट इन अ कंटेनर. ये काफी दिन तक स्टोर्ड भी रहता है, थोड़े दिन तक, 2-3 दिन तक यूज कर सकते हो. एंड स्किन इतनी बेबी सॉफ्ट हो जाती है ना, मतलब क्या बताओ. जस्ट ट्राई इट एंड come back to my comment section and please thank me, because मेरी ये बेस्ट वे है ऑफ स्क्रबिंग अवे डेड स्किन्स. स्क्रब करने के बाद वी कैन मूव ऑन टू रिमूविंग आवर बॉडी हेयर इफ यू वांट टू. इस चीज के रिगार्डिंग मुझे बहुत कुछ बोलना है ऑलरेडी, विच वी आर गोइंग टू टॉक लेटर इन दिस वीडियो. तो अभी के लिए वो जगह छोड़ देते हैं. बॉडी हेयर इज लेफ्ट, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम पॉज रखेंगे और वी आर गोइंग टू प्रोसीड विथ हेयर केयर. यूज 2 शैम्पूज. एक आपका रेगुलर शैम्पू जो आप पे सूट करता है, विच बेसिकली यू यूज ऑलरेडी, तो वो शैम्पू, एंड एक क्लैरिफाइंग शैम्पू. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्कैल्प के लिए, बिकॉज बिल्डअप्स हमारे स्कैल्प पे बहुत होते रहता है. कभी किसी का अगर ड्राई स्कैल्प है तो डैंड्रफ हो सकता है, ऑयली स्कैल्प है तो बिल्डअप्स होते रहता है, प्रोडक्ट्स का रेजिड्यूज रह जाता है. सो फॉर दैट वी फर्स्ट नीड टू क्लेंज आवर scalp with a clarifying shampoo. Then we are supposed to use our normal shampoo for the second wash. If you do not have a clarifying shampoo, you can basically use apple cider vinegar or glycolic acid toner. Ordinary ka glycolic acid toner or any apple cider vinegar, you can just put it in your scalp and massage for some time, like maybe 5 to 10 minutes, that's it. Then you can use your regular shampoo instead of clarifying shampoo. What I personally do is, I do not have dandruff or itchy scalps, but I do not want them either. So what I do is, I use an anti-dandruff shampoo once in every 15 days, because अभी मेरे को dandruff क्योंकि नहीं है, as I said. But अगर आपको dandruff है, you are supposed to use it
एज पर योर डर्मेट हैज सजेस्टेड, और अगर मेरे से पूछोगे तो आई वुड से एवरी 2 वॉशेस, एवरी अदर वॉश आप डैंड्रफ शैम्पू यूज कर सको, एवरी वॉश में भी यूज कर सकते हो। फॉर योर रेगुलर शैम्पू, लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का ये वाला रेंज काफी अच्छा है। इट्स वेरी माइल्ड फॉर योर स्कैल्प एंड smells also very good, very mild. And just in case if you are very busy and you want to skip a hair wash day, so you can also use dry shampoos. Lots of dry shampoos are available in the market. You can choose one. Next step that we're going to do is condition our hair. बहुत बेसिक स्टेप है, सब करते हैं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल फ्यू थिंग्स जो कि शैम्पू करने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको स्क्वीज आउट कर लो बिफोर अप्लाइंग एनीथिंग ऑन योर स्कैल्प। अगर आप हेयर मास्क यूज करते हो, अगर आप कंडीशनर यूज करते हो, जो भी यूज करोगे, पहले बालों को स्क्वीज कर लो, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए, उसके बाद आप अप्लाई करके रख दो। बिकॉज वेन यू डू नॉट डू इट तो क्या होता है ना कि कंडीशनर अच्छे से आपके बालों पे चिपकता ही नहीं है, तो वाटर के साथ वो कंडीशनर भी बह जाता है एंड इट washes away. So it does not do the work that it actually is supposed to do. For extra hydration, you can also mix a little honey and coconut oil along with your conditioner and apply this all over your, not on the scalp के सिवा लेंस पे अच्छे से apply you can do it. बॉडी केयर के साथ साथ स्किन केयर बहुत जरूरी है, फेस केयर बहुत जरूरी है। मेंटेन अ स्किन केयर रूटीन दैट यू रिगोरसली फॉलो। 10 स्टेप्स होने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू 2 to 3 स्टेप्स बेसिकली। जस्ट फेस वॉश करो, उसके बाद अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेना है, यू वांट सम सीरम टू अप्लाई। इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट सीरम्स, डू लेट मी नो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू जस्ट से कि अगर आपको कोई कंसर्न है स्किन पे जो आप टारगेट कर रहे हो, तो आप सीरम अप्लाई करो। लेयर इट विथ मॉइस्चराइजर। एक सीरम अप्लाई करना इज इनफ। फेस को मॉइस्चराइज कर लो सो दैट इट गेट्स लॉक्ड। अगर डे टाइम में हो तो सनस्क्रीन यूज कर लो। यू डू नॉट नीड अ 7 स्टेप रूटीन, 3-4 स्टेप डज द जॉब। अगर टीनेजर हो तो फिर तो आपको सीरम भी लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली फेस वॉश कर लो, मॉइस्चराइज कर लो और सनस्क्रीन लगाओ, दैट्स। नाउ वी कम टू हेयर रिमूवल मेथड। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप रेजर यूज कर सकते हो, थ्रेडिंग करा सकते हो, वैक्सिंग करा सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू लेजर थेरेपी, हेयर रिमूवल क्रीम्स। बहुत सारे ऐसे मेथड्स है जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप वो करो। इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट हेयर रिमूवल टेक्निक्स, डू लेट मी नो, बट मेक श्योर आपको, अगर आप फीमेल हो तो पीरियड आने से पहले रिमूव the hair down there, because otherwise it's very messy. You don't want that in your periods, right? अगर आप बॉडी पे शेविंग कर रहे हो तो एक्सफोलिएट जरूर कर देना, जैसे कि मैंने बोला है कि बॉडी स्क्रब यूज करो। बॉडी स्क्रब यूज करने के बाद यू मूव ऑन टू शेविंग योर बॉडी एंड देन यू सपोज टू अप्लाई अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर, बॉडी मॉइस्चराइजर। अगर हो सके, इफ यू आर नॉट यूज टू द फीलिंग जो होता है आफ्टर रिमूविंग योर बॉडी हेयर, तो आप ऑयल भी लगा लो, बॉडी ऑयल भी लगा लो मॉइस्चराइजर के ऊपर, बिकॉज दैट वर्क्स द बेस्ट फॉर मी। इट इज समथिंग दैट आई डू पर्सनली एंड मुझे कभी स्ट्रॉबेरी लेग्स नहीं हुए हैं, कभी भी बम्प्स वम्प्स नहीं आए हैं आफ्टर आई शेव माई बॉडी। टॉकिंग अबाउट मी, मैं फेस पे अगर कहीं पे हेयर होना होता है तो मैं वैक्सिंग कर लेती हूँ, विच इज नॉट गुड क्योंकि वैक्स बर्न्स हो जाते हैं, बट एटलीस्ट इट्स बेटर देन यूजिंग रेजर्स, राइट? एंड फॉर माई आईब्रोज आई यूज रेजर्स। मुझे नहीं होता कि मैं किसी पार्लर, मतलब आई कैन नॉट रिलाई ऑन एनीबडी एल्स फॉर माई फेस, आई कैन नॉट। मुझे लगता है कि मैं खुद ही कर लूंगी, बिकॉज एक्चुअली मैंने 1 या 2 ही बार थ्रेडिंग कराया था एंड बहुत खराब नहीं था एक्सपीरियंस, बट आई जस्ट लाइक टू डू इट बाय माई सेल्फ। मतलब अगर खराब भी मैं कर रही हूँ तो एटलीस्ट मैं करूँ, कोई और तो ना करे। अगर आप थ्रेडिंग करते हो तो यू कैन ऑल्सो यूज ट्विजर्स फॉर थोड़े थोड़े हेयर्स जो बच जाते हैं इन योर फोरहेड। वैक्सिंग थोड़ी सी पेनफुल होती है बट इट्स नाइस, हेयर ग्रोज बैक सॉफ्टर। आप एपिलेटर भी यूज कर सकते हो। हेयर रिमूवल क्रीम्स भी आती है बट दैट एक्चुअली बर्न्स योर स्किन, तो आई डू नॉट रिकमेंड डूइंग इट। अगर आपको इस रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू मेक अ
really detailed video about this. पोस्ट वैक्सिंग और पोस्ट बॉडी शेविंग हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, अगर हो सके तो ऑयल भी लगा लो, और उसके बाद यू कैन ऑल्सो लेयर अ परफ्यूम एज पर योर चॉइस, जो भी रेंज आप यूज कर रहे हो ना। एक्चुअली अगर सेम टाइप का परफ्यूम सेम फ्लेवर का होता है तो अच्छा होता है। एज इन अगर वनीला आप बॉडी वॉश और बॉडी स्क्रब यूज कर रहे हो तो वनीला वाला परफ्यूम यूज करो। अगर फ्लोरल कर रहे हो तो पूरा ही रेंज फ्लोरल यूज करो। दैट एक्चुअली मेक्स योर फ्रेग्रेंस लास्ट फॉर रियली लॉन्ग टाइम। जहां भी परफ्यूम यूज कर रहे हो एट दिस पॉइंट एवरीबडी नोज कि थोड़ी सी वैसलीन लगा लो और उसके बाद पल्स पॉइंट्स पे परफ्यूम स्प्रे करो। वैसलीन अगर नहीं है तो आप मॉइस्चराइजर भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो, फिर पल्स पॉइंट पे स्प्रे कर लो। दैट्स इट। Coming to fourth point, that is undergarment hygiene. Change and wash your undies every day, or if not every day, then of course every other day. For daily use, I would say कोई भी cotton fabric का underwear use करो. It's not good to use your fancy looking underwears which are very uncomfortable to use on a regular basis. For washing your underwears, you can actually hand wash them and put it in the washing machine with a gentle, क्या कहते हैं, with a very gentle soap or detergent. You put it in the washing machine and then you let it sun dry so that वो sterilize भी हो जाता है. For females, actually, two more things that I want you guys to know, that you're supposed to wash it from the front to back and not from back to front. This is something जो मुझे बहुत recently ही पता चला through study. Do not wear your undies to bed. Let that area breathe. Now comes the fifth point, period hygiene, which is basically for women. During periods, you can use anything that makes you feel comfortable. You can use pads, tampons, menstrual cups, period panties that also disposable or reusable. One thing that I really want to point out is do not use any soap down there. Your organ is basically self-cleaning. It does not require any external cleaning. V-wash वगैरह कुछ जरूरी नहीं है. अगर आप एक्चुअली करना चाहते हो वॉश, तो यू कैन यूज अ वेरी जेंटल soap or cleanser, that too on the outer surface. You're not supposed to don't do that. Don't put anything. For teenage girlies, always keep an emergency kit along with you. I would love to help you regarding this. Do let me know in the comments if you want a video regarding the same. Also, अगर teenage days पे हो तो discharge होना बहुत normal है. You can wear panty liners if you want to. They are very thinner than pads, तो problem नहीं होता है. Discharge होना is very normal, but the color matters. Also, toilet seat sanitizers carry करो. Be safe का sanitizer spray आता है. Spray it on the toilet seat, or you can actually carry disposable toilet seat पेपर्स भी आता है, दैट ऑल्सो यू कैन कैरी. अगर आप नहीं कैरी करना चाहते हो एंड इफ यू आर यूजिंग अ पब्लिक वॉशरूम, तो मेक श्योर टॉयलेट पेपर को अच्छे से प्लेस कर लो टॉयलेट सीट के ऊपर एंड देन यूज सीट. टॉकिंग अबाउट मी, आई ऑल्सो डू द सेम. आई कैरी माई ओन toilet seat paper, and also I like to spray and sanitize it before and after. And one additional precautionary step, I do it half seated. I do not want my skin to touch the toilet seat. अगर आप टॉयलेट पेपर लगा रहे हो तो मेक श्योर आप यूज करने के बाद उसको अच्छे से डिस्पोज भी कर दो. पैड्स भी अगर यूज कर रहे हो या कोई भी चीज अगर यूज कर रहे हो ऐसे इंटरनल हाइजीन का, तो मेक श्योर टू डिस्पोज इट प्रॉपरली. जैसे आपको मिलता है वैसे ही आपको डिस्पोज भी अच्छे से करना है. एंड द फाइनल पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी मिसलेनियस. इसमें हमारा आ जाता है नेल केयर. मेक श्योर अगर आप विमेन हो तो मेक श्योर योर नेल्स आर प्रॉपरली डन. ऑफ कोर्स आई नो कि हमेशा अफोर्ड नहीं कर पाते हो टू गेट योर नेल्स डन, मैनिक्योर पेडिक्योर्स डन, but if you're having long nails, make sure you're using nail paint all the time. अगर आप अच्छे से clean nails maintain नहीं कर पाते हो, अगर आप नहीं nail paint लगा रहे हो, तो make sure it's very clean and your nails are in proper shape and color. Also, अगर आप nail paint लगा रहे हो और वो थोड़ा सा उठ गया है, तो make sure you remove the entire thing, but because otherwise it looks very unprofessional and unhygienic. You do not want that, right? Though are parts that we basically neglect most of the time, be it women or men. Ears के पीछे वाला portion, while you wash your face, make sure you wash this area as well. And ears का अंदर you use a Q-tip and just
इसका जो स्ट्रक्चर है दैट यू फॉलो एंड यू क्लीन इट अप. ओके, नेवल के लिए भी सेम चीज है. You just follow the structure of your navel and clean it up regularly. You can use a Q-tip or you can use a towel, bath towel, that's it. And एक pro tip do, you can actually put ghee, normal cow ghee in your navel. That actually helps a lot with your, अगर आपको lip dryness के issue है, that helps a lot. That is it for the video. Thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, make sure you like, comment, share and subscribe to the channel. Also make sure to let me know in the comments what more video can I bring for you guys, what you would like to watch, and I'll see you next time very soon. Bye.